Okay, shall we start? Can you hear me? Yes, sir. Shall we start? Yes, sir. So yesterday we have discussed up to isospin, right? Is not it? So Yes, sir. yeah, we have discussed about that isospin. So tomorrow, today we will discuss first about that third component of isospin. Then we will discuss Gell-Mann-Nishijima formula. Then we will discuss about that helicity. Then we will discuss about that parity. Then time reversal. Then charge conjugation. Okay. So let us proceed. So first will be third component of isospin. So we give heading. इसको I3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखा क्या गया है, जैसे आपका आइसोस्पिन में क्या है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, जैसे आपका पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, ठीक है ना। तीनों का आइसोस्पिन क्या है, ऑन है, मतलब सिमिलर है। तो उन ग्रुप ऑफ पार्टिकल को क्या किया है, डिस्टिंग्विश करने के लिए एक क्वांटम नंबर और लाया गया है, वो है आपका I3, ठीक है। जैसे आपका पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, फॉर एग्जांपल इनका आई कितना था, सारे का आई आपका था आई इक्वल्स टू 1, राइट। बट दे हैव डिफरेंट चार्ज, सो to distinguish these three particles or group of particles, we have assigned another quantum number, that is I3, and I3 can be raised from, so some of the book used to write IZ also, right? So I3 can be from minus I to plus I, okay, or plus I to minus I, you can write like that. So it means for these three particle, what will be that range? I3 can be, can you please tell me? -1, 0, +1. So -1, 0, +1, or you can write like on 0, -1. So on corresponds to pi plus, 0 corresponds to pi 0, and minus on corresponds to pi minus. Okay. Similarly, can you please tell me for proton and neutron group, what was that I? Yesterday we have written, right? Or derived also. 1/2. Very good, because there are two particles. So 2I plus 1 equals to 2. It means I is half for both particle. Then what about that I3? What about I3? Half and plus half. Very good. For plus half, which particle? Proton. Very Proton. good. Okay, okay, very good. So for proton, I3 will be plus half, and for neutron, that I3 will be minus half. Okay. Similar to I strangeness, I3 also additive in nature, but it is not necessary to conserve, right? For strong interaction, it will be conserved. For EM interaction, it will be conserved. But for weak interaction, it may not be conserved. Okay. तो ये कौन सा कंजर्वेशन लॉज में आएंगे, आप बताइए जरा। Approximate conservation. वेरी गुड, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। ओके। Yes, sir. हाँ, फिर हम पढ़ेंगे Gell-Mann-Nishijima फॉर्मूला। आप लोगों को किसी का कोई आइडिया इस फॉर्मूला के बारे में, किसी का है? एनी आइडिया? No, sir. No, sir. Okay, okay. So the charge, third component of isospin, baryon and
strangeness of a subatomic particle are related to each other. It means charge of any subatomic particle can be derived from other three quantum numbers like I3, baryon, and strangeness. So Q equals to I3 plus B plus S by 2. Here B means baryon number, S means strangeness, okay, not spin. ठीक है, और यहाँ पे आपका चार्ज है, ठीक है. और B प्लस S को क्या बोलते हैं, किसी को कोई आइडिया? B प्लस S को बोलते हैं Y और इसको बोलते हैं हाइपर चार्ज. तो B प्लस S को क्या बोलते हैं, हाइपर चार्ज बोलते हैं. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपका, Q इक्वल्स टू I3 प्लस B प्लस Y बाई 2. ओके, ठीक है. जरा इस इक्वेशन के थ्रू आप प्रोटॉन का स्ट्रेननेस बता सकते हो? एनीबॉडी, कैन एनीबॉडी कैलकुलेट स्ट्रेननेस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस इक्वेशन? So 1. हाउ? 0. वेरी गुड, 0 राइट. तो प्रोटॉन का बेरियन नंबर कितना होता है? हाँ, आप बोलिए ना. The proton is baryon particle, right? So obviously that number will be on, right? It is not Yes, sir. anti-baryon, right? So if you Right, sir. write it, हाँ, so यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चार्ज ऑन हो जाएंगे. I3 कितना है, हाफ है ना? Plus sir. हाँ. B कितना है आपका, 1. ऑन है. S आपको निकालना है और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है. तो इसको आप इधर लेके आ जाओगे, कितना होगा, हाफ होंगे, है ना, है ना. इधर आपका क्या हो जाएंगे, अगर इसको आप इधर लेके आ जाओगे, ऑन माइनस हाफ कितना हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे. तो सिंपली आपका क्या हो जाएंगे, 1 प्लस एस बाई 2. इसको काट दो, फिर कितना आ जाएंगे, एस इक्वल्स टू 1 माइनस 1, 0. ठीक है. चार्ज है, सॉरी, चार्ज है. हाँ, क्यू इज चार्ज. चार्ज नंबर, सॉरी, चार्ज नंबर. हाँ, चार्ज नंबर हमने कल डिस्कस किया था ना, चार्ज नंबर. यस सर, मतलब चार्ज नंबर की तरह. हाँ हाँ हाँ. जरा आप के प्लस का निकाल सकते हो, कितना होंगे? सर बी के बैरियन नंबर. हाँ, बी बैरियन नंबर है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो था आपका कैपिटल क्यू, वो है चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल का. I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ द आइसोस्पिन. B मींस बैरियन नंबर. S मींस strangeness, not spin. Okay, did you get what I'm saying? Sir plus 1. हाँ, plus 1. Very good, very good. Okay. हाँ, very good. Everybody agreed? Agreed or not? आपने किसका दिया? हाँ, के प्लस के लिए पूछा था, तो के प्लस का चार्ज कितना होगा, ऑन होगा. I3 कितना होगा, I3 कितना, वेरी गुड, I3 हाफ होगा. बैरियन नंबर कितना होगा, ऑन, 0. वेरी गुड, नॉट बैरियन, राइट. सो दिस नंबर विल बी 0. Yes. Very good. Then S by 2. S you are going to calculate. So if you solve it, you will definitely get S equals to plus 1. Okay. Yes sir. Did you get what I'm saying? Yes sir. हाँ, तो कोई भी सबएटॉमिक पार्टिकल का आप, अगर आपका यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर रिलेटेड है, तो अगर 3 दिया है तो फिर जो एक्स्ट्रा और है, एक है, उसका आप निकाल सकते हो, है ना. सपोज मान लो 3 दिया है, आपको चार्ज निकालने के लिए बोला, तो आराम से निकाल सकते हो. ठीक है ना. यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको क्या बोला था, स्ट्रेननेस निकालने के लिए है, दिया था, है ना. यहाँ ये भी हो सकता है कि स्ट्रेननेस दिया है, चार्ज पूछा है, I3, मतलब निकाल सकते हो. ठीक है ना. Yes sir. अब हम पढ़ने वाले हैं, बाय द वे, ये जो फॉर्मूला है, ये बाद में मॉडिफाइड हो जाएंगे. जब हम क्वार्क मॉडल में जाएंगे तो फिर और क्वांटम नंबर इसमें ऐड होंगे, है ना. हम जब क्वार्क मॉडल पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पे पढ़ेंगे मॉडिफाइड गेलमैन-निशिजिमा फॉर्मूला. ठीक है. Yes sir. हाँ, एक बात तो नेट में डायरेक्टली मॉडिफाइड गेलमैन-निशिजिमा फॉर्मूला ही पूछा गया था और 5 मार्क्स का था वो.
उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब 1 सेकंड का है काम है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नॉट एबल टू सॉल्व। ओके, नाउ हम पढ़ने वाले हैं हेलिसिटी के बारे में, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, क्लास में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। अच्छा, हेलिसिटी के बारे में आपने पढ़े हो कभी? नहीं सर। यस सर, बोसॉन्स वगैरह में। हाँ, हेलिसिटी को एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच, और इसका जो एक्सप्रेशन है एस डॉट पी डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एस इंटू मॉड्यूलस ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन along the direction of flight, or you can say the projection of spin along the direction of momentum, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल का हेलिसिटी प्लस ऑन है, अगर सपोज मान लो ये प्लस ऑन कब पॉसिबल है? जब सेम तो जब सेम डायरेक्शन में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे राइट हैंडेड हेलिसिटी। उसको क्या बोलेंगे हम? राइट हैंडेड। ओके, अगर माइनस ऑन है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। Did you get what I'm saying? यस सर। अब जैसे मैं एग्जांपल पिक्चर देखे आपको, सर एक बार दोबारा से बताएंगे, एस और पी क्या था? स्पीड एंड हाँ। मोमेंटम ना? यस, हाँ, स्पीड और ये आपका मोमेंटम था। मतलब इसका हेलिसिटी का जो डेफिनेशन है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। फिर ये भी बताएंगे कि हेलिसिटी जो है वो सीडो स्केलर है ना। आपने पढ़े हो कभी सीडो स्केलर, सीडो वेक्टर, ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर पढ़े हो? नहीं सर। नहीं पढ़े हो, ओके ठीक है, अभी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे। सर, हाँ बोलो। सर यहाँ स्पिन मैकेनिकल स्पिन तो है नहीं, तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन कैसे कर रहे मैकेनिकल स्पिन मतलब? हैं? स्पिन क्या है सर यहाँ पे? स्पिन डिफाइन कैसे कर रहे हैं? मैकेनिकली तो डिफाइन होता नहीं है, मैकेनिकल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट। हाँ एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हो। जैसे आप स्पिन पढ़े हो ना क्वांटम मैकेनिक्स में, अच्छे से पढ़ाया अतुल सर ने, है ना, इतना अच्छे से नहीं सर, पढ़ाते हैं ना। अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ाया तो फिर अतुल सर अच्छे से पढ़ाएंगे उसको, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चरली ड्रॉ करके बताता हूँ, है ना। पहले इसको अच्छे से समझो, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं, इसका इनसाइड क्या है। Sir, one more thing. Please switch off that light कुछ लाइट above the board, please. इज इट ओके? नो, Not that, sir. Sir, second one. नाउ इज इट ओके? Now it's fine. It's fine. सपोज मान लो ये मैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का एग्जांपल लिख के बताता हूँ। ये आपका न्यूट्रिनो का है। सर अभी बताता हूँ, प्लीज हैव ए पेशेंस। So if you see the spin of neutrino is along clockwise, right? And its direction is right hand. So if you say, sorry, towards this, okay. So if you see, if you make the curl of your palm, see, curl of your palm is representing the direction of spin, okay. Curl of your palm, and this
थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है, मतलब लेफ्ट हैंड क्या कर रहे हैं, इस फेनोमेना को क्या कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है ना। और इसको अच्छे से, और एक्चुअली इसका जो डायरेक्शन होगा ना, मैं ये कहना चाह रहा था, जो मोमेंटम का जो डायरेक्शन है एक्चुअली ये नहीं है इन आउट ऑफ द बोर्ड। तो इसे समझ सकते हो, जैसे आपका ये है, पाम का रोटेशन करो और कार्ल लो, है ना। तो पाम का जो कार्ल है वो आपका क्या कर रहा है, स्पिन का डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और ये जो आपका थंब है, थंब का जो डायरेक्शन है एक्चुअली मोमेंटम का डायरेक्शन है। तो ये क्या है, न्यूट्रिनो के लिए जो है ये आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्लेन कर पाता है। सिमिलरली राइट हैंड जो आपका एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो के लिए क्या है, आपका जो डायरेक्शन है, देखो आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना। और आपका जो मोमेंटम का डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द बोर्ड, है ना। तो वहां पे आपका जो ये राइट हैंड है, राइट हैंड का जो कार्ल है, सॉरी पाम का जो कार्ल है, वो क्या कर रहा है, स्पिन का डायरेक्शन को बता रहा है। और जो आपका थंब का डायरेक्शन है वो क्या कर रहा है, आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट को बता रहा है ना। तो ये सारे न्यूट्रिनो के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड का जो कार्ल है, सॉरी पाम का जो कार्ल है, वो क्या करते हैं, स्पिन को डिफाइन करता है। और जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या करता है, उसका मोमेंटम को डिराइव कर पाते हैं, है ना, डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो इसीलिए न्यूट्रिनो जो है क्या है, लेफ्ट हैंडेड है सारे न्यूट्रिनो नेचर में, है ना। और जो एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो के लिए क्या है, जो राइट हैंड का जो पाम का कार्ल है वो स्पिन का डायरेक्शन को नोट करता है, और उसका जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या करता है, उसका मोमेंटम का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए सारे एंटी न्यूट्रिनो नेचर में जो है वो क्या है, आपका राइट हैंडेड है, ठीक है। समझ में आया क्या, किसी को कोई Yes, डाउट? sir. हाँ, मतलब क्यों लेफ्ट हैंडेड समझ रहे हो ना, क्योंकि जो आपका पाम का जो कार्ल है वो स्पिन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाता है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका मोमेंटम का डायरेक्शन है ना, वो उसका थंब का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड का जो ये है थंब है वो एक्सप्लेन कर पाता है। इसीलिए नेचर में जितना सारे आपका न्यूट्रिनो है वो सारे लेफ्ट हैंडेड है, और जितना एंटी न्यूट्रिनोज है सारे क्या है, राइट हैंडेड है, ठीक है। अब ये बताऊंगा कि जो आपका हेलिसिटी है वो क्या है, स्यूडो स्केलर है। फिर स्यूडो स्केलर होता क्या है, आपका ट्रू स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और स्यूडो वेक्टर क्या होता है, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर क्योंकि सर जो हेलिसिटी है वो एंगल पर ही डिपेंड करती है, तो क्या हमें एक नॉन इंटीजर हेलिसिटी की वैल्यू देखने को मिलती है नेचर में कभी भी? सर एक नॉन इंटीजर हेलिसिटी की वैल्यू देखने को मिलती है हम लोगों को कभी भी नेचर में? हाँ, इसका खोज अभी जारी है, जब मिलेंगे डेफिनेटली आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। जी सर, जी सर। अब जैसे आपको पता है कि पैरिटी ऑपरेटर आर के ऊपर ऑपरेट करके क्या देता है, सपोज मान लो पैरिटी ऑपरेटर को, हाँ रिफ्लेक्शन। आपको पता है ना, मिरर रिफ्लेक्शन है ना, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये क्या देते हैं, आपका -8 देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर जो है वो ट्रू वेक्टर है, आर जो है वो ट्रू वेक्टर है। तो अगर कोई वेक्टर के ऊपर पैरिटी ऑपरेट करके अगर उसका साइन को रिफ्लेक्ट इनवर्स कर रहा है, दिस मींस दिस वेक्टर इज ट्रू वेक्टर। बट व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम, कैन यू प्लीज चेक नाउ? एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर, राइट? डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? एंगुलर मोमेंटम को आप क्या लिखते हो, r क्रॉस p, राइट? Yes, sir. हाँ, it will be pseudo because you see L is nothing but r cross p, not it. L is a vector, right? Because this is a cross product of two vectors, right? Now if you operate p, r will be minus r, right? And p will be minus p. So minus minus it will be plus. So under the parity operation, L will be plus L. But it is a vector, right? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नो सर। Sir, how it is अच्छा, L वेक्टर है या स्केलर है, पहले ये बताओ। vector? वेक्टर है ना, वेक्टर है ना। अब मैंने क्या बोला था, ट्रू वेक्टर के लिए क्या होगा, अगर पैरिटी ऑपरेट करने के बाद उसका साइन को रिवर्स कर रहा है, मतलब r से -r हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रू वेक्टर है ना। समझ रहे हो, ये ट्रू वेक्टर है, इसमें कोई डाउट? Sir, how it is classified? हाँ, सर ये डिफाइन कैसे किया, पैरिटी ऑपरेटर है क्या अभी?
पैरिटी ऑपरेटर मैं बताऊंगा। पैरिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं। कोई भी सिस्टम का क्या करते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन सिमेट्री देखने के लिए, है ना। तो आर को क्या करते हैं, माइनस आर करते हैं, है ना। इतना अभी समझो, बाकी आप ओके डिस्कस करेंगे। तो पैरिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, इसका स्पेशल जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या करते हैं, माइनस आर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कोई भी आपका स्पेशल कोऑर्डिनेट है उसको क्या करते हैं, माइनस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज मान लो आपका साई एक आपका स्टेट है, एक्स वाई जेड है ना, एंड इफ इट इज टाइम डिपेंडेंट। नाउ अगर आप इसमें पैरिटी ऑपरेट करोगे तो ये क्या देगा बताओ। इस स्टेट का जो स्पेशल कोऑर्डिनेट है ना, माइनस वाई माइनस टाइम माइनस एक्स माइनस फाइव माइनस जेड। ये तो आप लोग जानते हो अच्छे से, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। नो सर नो सर। अब ये बताओ, पैरिटी अगर आर के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो फिर क्या देंगे, माइनस माइनस आर। माइनस आर देंगे। बी के ऊपर माइनस किसके? भी वेलोसिटी माइनस भी माइनस बी, माइनस बी। क्योंकि डी आर बाई डी टी होते हैं ना, v इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी होते हैं ना। तो आर माइनस आर करोगे तो डेफिनेटली माइनस बी देंगे। वेरी गुड, ये माइनस बी हो जाएगा। पैरिटी ऑपरेटर अगर पी के ऊपर ऑपरेट करे तो फिर क्या देंगे बताओ। टाइम के साथ नहीं माइनस लगेगी बी। माइनस पी। वेरी गुड, माइनस पी। सर, टाइम के साथ नहीं लगेगी, टाइम के साथ नहीं लगेगी। टाइम के स्पेशल कोऑर्डिनेट बोला था मैंने ना, टाइम अच्छा के सर, लिए तो टाइम रिवर्सल होता है ना। लेट ज्वाइन हुआ सर। हैव पेशेंस, अभी बताऊंगा, है ना। हाँ सर, वो मैं लेट ज्वाइन हुआ ना, इसलिए मैं हाँ, क्यूरियोसिटी तो बहुत अच्छा है फिर, बट पेशेंस रखो। ये सब चीज कोई नहीं बताएंगे, जो ट्रू वेक्टर और स्यूडो स्केलर है ना, आप इसको ले लो अच्छे से, है ना, क्योंकि बाद में आपको काम में आने वाले हैं रिसर्च में जब जाओगे। अब p माइनस पी हो गया। अब ये बताओ कि सपोज मान लो कोई अननोन क्वांटिटी है, r क्रॉस p है, आपको पता नहीं है क्या है, बट ये क्या है, वेक्टर दिख रहा है ना, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर ही होंगे ना। r sir. is a vector, Yes, p is a vector, so cross product of these two vectors will be right। बट इसमें आप पैरिटी ऑपरेट करो, पैरिटी ऑपरेट करोगे r क्या हो जाएंगे, अभी हमने किया है माइनस आर। p क्या होंगे, माइनस बी। तो रिजल्टेंट क्या होंगे, आर क्रॉस बी। r क्रॉस p होंगे ना। ये वेक्टर है, बट क्या है, अंडर पैरिटी ऑपरेशन क्या हो रहा है, इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इस वेक्टर को क्या बोला जाता है, स्यूडो वेक्टर बोला जाता है। जो वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है अंडर पैरिटी एक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वेक्टर बोलते हैं। और जिस वेक्टर का पैरिटी ऑपरेशन में साइन नहीं चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो वेक्टर बोलते हैं। अब समझ में आया। तो एल जो है एक स्यूडो वेक्टर है। अब कोई डाउट? नो सर समझ में आया ना। तो एल क्या है, आपका स्यूडो वेक्टर है। समझ में आई? जी सर। हाँ, समझ लो, ये कोई नहीं पढ़ाता है। एल इज ए स्यूडो वेक्टर। राइट। अब आ जाओ इसमें स्केलर में, ट्रू स्केलर एंड स्यूडो स्केलर। सर जिसका साइन चेंज होता है वो क्या है? टाइम रिवर्सल है, अभी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी पैरिटी भी पढ़ाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। ये तो मैं बता रहा हूँ स्यूडो स्केलर यहाँ पे हेलिसिटी के लिए काम में आएंगे ना, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हेलिसिटी इज ए स्यूडो स्केलर, है ना। डॉट प्रोडक्ट तो हो रहा है, डेफिनेट स्केलर है, दो वेक्टर का आपका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो एस डॉट पी, है ना, तो डेफिनेटली इट विल बी स्केलर, बट इट इज नॉट ट्रू स्केलर, इट इज ए स्यूडो स्केलर। ओके, विल डिस्कस। सपोज मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी ले लो, सपोज मान लो रो ही ले लिया मैंने, सपोज मान लो ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसके ऊपर अगर पैरिटी ऑपरेट करोगे, प्लीज नोट दैट रो इज अ कांस्टेंट हियर, ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एनी कोऑर्डिनेट, ओके, सो इट इज ए स्केलर या कोई वेक्टर, आप पोटेंशियल ले लो, इसके ऊपर अगर पैरिटी ऑपरेट करोगे तो फिर क्या होगा, रो ये कांस्टेंट ही आ जाएगा। कांस्टेंट आ जाएंगे ना, तो फिर ये क्या है, ट्रू स्केलर है। Sir, Hmm. sir, I have a doubt that any scalar that have also the space coordinate, ना? मैंने क्या बोला था आपको कि अगर रो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑन एनी कोऑर्डिनेट, राइट? डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, but sir, रो सपोज मान लो रो 5 है, 5 है, तो इसमें क्या लगाओगे, कोई स्पेस कोऑर्डिनेट दिख रहा है? ओके 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 नहीं है ना। हाँ। Got it. हाँ। अगर आप हेलिसिटी में आ जाओ, हेलिसिटी का क्या लिखाया था मैंने एक्सप्रेशन,
एस डॉट पी डिवाइड बाय मॉड ऑफ एस मॉड ऑफ एस डॉट पी, और ये सपोज मान लो कोई कांस्टेंट है ना। जी सर। अब इसमें आप ये करो, पैरिटी ऑपरेट करो हेलिसिटी के ऊपर, क्या होंगे बताओ? सर सेम आ जाएगा सर। सेम आ जाएंगे, कैसे? यस सर, एस का माइनस एस हो जाएगा। एस का माइनस कैसे होगा? एस क्या है? एंगुलर मोमेंटम है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा यस सर। हाँ, इसका भी तो क्या हो जाएंगे, आर कॉस पी होंगे ना, इसका एक्सप्रेशन लिखोगे ऐसे ही कुछ यस होगा ना। सर। तो यस ये सर, क्या यस हो सर। जाएगा? सर ये सेम रहेगा। ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, तो क्या हो रहा यस है? सर। इसका टोटल चेंज हो माइनस जाएगा। एस हो जाएगा सर। है ना। तो ये क्या है? यस सर। सीडो स्केलर है, ठीक है, क्योंकि इसका पैरिटी ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इसका साइन चेंज हो रहा है ना। ये स्केलर तो है क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर का, बट क्या है, अंडर पैरिटी ऑपरेशन इट्स साइन गेट्स फ्लिप, राइट? यस सर। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अच्छे से समझो ये सब चीज, है ना, क्योंकि फ्यूचर में जब रिसर्च में जाओगे तो फिर याद आएगा डेफिनेटली ये क्लास। यस सर। क्योंकि मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ कोई सीएसआर के लिए। सीएसआर तो डेफिनेटली सबका ही होंगे, बट में फ्यूचर में जब आप करोगे ना, नेशन के लिए अच्छा रिसर्च करोगे ना, तब भी ये काम में आएगा, है ना, ध्यान में रखो। अब हम पढ़ेंगे पैरिटी। सॉरी मैं पैरिटी पहले ही बोल दिया था, है ना, बट पैरिटी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैरिटी में सिर्फ कोई नहीं है। अब मैं जैसे बोलूंगा पैरिटी, अंडर पैरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या चेंज होगा या नहीं होगा, वेक्टर पोटेंशियल का क्या चेंज होगा या नहीं होगा, ये सब जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीएसआर में, है ना। तो एक एक करके पैरिटी एक्चुअली बताते क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पैरिटी को डेफिनेटली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन, राइट, मिरर रिफ्लेक्शन, है ना। मिरर रिफ्लेक्शन मतलब अंडर पैरिटी आर चेंजेस टू माइनस आर, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब एक एक करके मेरे को बताओ। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अंडर पैरिटी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वेलोसिटी का क्या होगा, माइनस पी। माइनस पी। वेरी गुड। पी का क्या होगा, पी मोमेंटम है, माइनस पी। माइनस पी, ओके। डेल का क्या होगा, जो नेबुला लिखते हो आप, माइनस डेल। माइनस डेल। वेरी गुड, माइनस डेल, ठीक है। फिर आपका एक्सीलरेशन का क्या होगा, माइनस एक्स। माइनस एक्स। माइनस से, वेरी गुड। फोर्स का क्या होगा, माइनस एफ। माइनस एफ। वेरी गुड। जे का क्या होगा, करंट डेंसिटी, जी। अच्छा सर, ठीक है। माइनस कैसे प्लस ये होगा सर। कैसे, जे इक्वल टू आई एन ई वी डी होता है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम है ना सर जी। ये नहीं, सॉरी, जे यहाँ पे करंट डेंसिटी है ना, जे करंट करंट डेंसिटी, ओके सर, इसमें एक वेलोसिटी है ना। माइनस माइनस जे होगा। हाँ करंट डेंसिटी है, ओके। यस सर। जे क्या होता है, रो भी होता है, राइट। जे इक्वल टू Right, क्या sir. होता है, रो भी वो होता है, भी हाँ, है ना। रियल होगा सर। हाँ, रो होता है चार्ज डेंसिटी एंड वी होता Yes, है, sir. तो क्या हो जाएंगे ये, माइनस जे, है ना। कोई डाउट? एंड ऑब्वियसली वहां पे डिस्कस किया था अंडर पैरिटी रो का क्या हो जाएगा, रो ही रहेगा, है ना। रो। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर पोटेंशियल, इसका क्या होगा अंडर पैरिटी एक्शन, व्हाट विल इलेक्ट्रिक हैपन फील्ड का माइनस ही हो जाएगा। अंडर पी, रियल होगा सर। अंडर सर पी, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड वो होगा सूडो। वन पी बी एंड वेक्टर पोटेंशियल, क्या चेंज होगा, ई चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, होगा। ई हो जाएगा सर। ई चेंज होगा। चेंज E will होगा सर। change to negative. ओके, हाउ, सर क्योंकि आर वेक्टर होता है, आर वो होता है ना कैप सर, यूनिट वेक्टर। ओके। सर ये इनके एक्सप्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी बताऊंगा। फिर बी, बी
देखो आप लोग बी भी चेंज होगा। जैसे लॉजिक लगा रहे हो ना, वैसे हम भी लॉजिक लगाते थे कि आर पे ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, बी कैसे डिपेंडेंट है, ए कैसे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंडेंट है, ऐसे लगाते थे। बट इसमें बहुत डाउट है और आप डेफिनेटली गलत करके आओगे। नॉट ओनली पैरिटी, आप जब चार्ज कॉन्जुगेशन लगाओगे वहां पे भी प्रॉब्लम होगा, टाइम रिवर्सल में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट क्या है, जो मैक्सवेल इक्वेशंस है वो सारे इनवेरिएंट अंडर these three operations. Under parity it will be invariant, under charge conjugation this all four will be invariant, and under time reversal also. अब लिखो मैक्सवेल इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है? del dot E equal to rho by epsilon naught. वेरी गुड। अब बताओ क्या होगा? मैंने बोल दिया कि ये इक्वेशन इनवेरिएंट रहेंगे अंडर पैरिटी ऑपरेशन। तो सर आपने ई दो और चेंज बोले हो थे ना? जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे पैरिटी लगाओगे, अच्छे से सुनना है ना, पहले राइट हैंड साइड में लगाओ तो रो का क्या कोई चेंज होगा? नहीं चेंज नो होगा। सर, एप्सिलॉन नॉट का नो सर, नो सर। मतलब राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था डेल का क्या हो जाता है, माइनस डेल हो जाता है, तो डेफिनेटली हाँ ई का क्या होगा, माइनस ई होगा, तभी तो plus, हाँ इट मींस। अब दूसरा बी का आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ। सर बी भी चेंज हो जाएगा। श्योर? E भी change हो सर बी नहीं चेंज। कैसे होगा बताओ? डेल डॉट बी राइट हैंड साइड पे स्केलर होता है ना। हाँ देखो मैं आपको सिखाता हूँ, ये पैरिटी वाला मैं सिखा दूंगा, टाइम रिवर्सल आप बताओगे मेरे को, ठीक है। और ये सीख लो है ना, क्योंकि ये आगे काम में आने वाले हैं और रिसेंटली यहाँ से क्वेश्चन देते हैं सीएसआर में, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ये इक्वेशन है कर्ल डॉट बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1 by c Mu naught square J. del E by del T। म्यू नॉट जे प्लस तो mu naught epsilon naught del E by वन del बाई T. सी स्क्वायर, इसने किसने बोला था, वन बाई सी स्क्वायर डेल ई बाई डेल टी, राइट, वेरी गुड, ठीक है। सॉरी मैंने आपका टर्म लास्ट में लिख दिया, पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। अब बताओ कि बी का क्या चेंज होगा? पहले मैंने क्या बोला था, राइट हैंड साइड में देखो, ई का क्या हो जाता है, माइनस E. माइनस ए का क्या हो जाता है, माइनस E. वेरी गुड। कर्ल का डेल का क्या हो जाता है, माइनस डेल. तो बी का कोई चेंज होगा क्योंकि माइनस No, sir. राइट हैंड में हो नो रहा सर नहीं चेंज। है। वेरी गुड, चलो अब एक तो आप बताओ कि वेक्टर पोटेंशियल का क्या होगा, वो आप बताओ। आई हैव डाउट। क्या डाउट? सर डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 इक्वेशन भी तो हम लगा सकते हैं। हाँ लगा के क्या मिलेगा आपको? सर उसमें तो राइट हैंड साइड तो 0 है। हाँ तो जीरो माइनस करो प्लस करो कोई फर्क पड़ेगा वहाँ पे? हाँ तो वो नहीं चेंज होगा। हाँ और लेफ्ट हैंड साइड तो डेल है तो वो चेंज होगा। तो बी शुड बी चेंज। बी शुड बी चेंज, हाउ? डाइवर्जेंस जब जीरो है तो फिर आपको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को लिखा हूँ। यहाँ पे कोई डाउट है आपका? अगर वो होता तो फिर मैं वहाँ पे डाउट ना होता तो फिर वहीं पे लिख देता, क्योंकि वो नाइसली एक्सप्लेन करने के लिए ये इक्वेशन परफेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे जीरो है वहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते, माइनस है या प्लस है, वो क्वाइट इम्पॉसिबल टू से। ओके आप ये बताओ वेक्टर पोटेंशियल का क्या होगा? माइनस ए। कैसे? del cross A equals to B. E is equals to del cross A। वेरी गुड, तो आप लोगों ने सीख लिया है ना। तो बी इक्वल्स टू क्या होता है बेसिकली आपका कर्ल ऑफ ये होता है ना। अंडर पैरिटी बी, बी का कोई चेंज नहीं है, कर्ल का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डेफिनेटली ए का क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो अंडर पैरिटी ये शुड बी व्हाट, माइनस ए, राइट। ठीक लगा कि नहीं? समझ में आया ना सबको? Yes. डाउट? यस यस। सारे जो प्रॉपर्टी समझ में आया? ओके अब मैं बोलता हूँ कि पैरिटी जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या है? तो सर मल्टीप्लाई करेंगे पैरिटी कंपेयर करते हैं. हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सपोज मान लो कोई मैं डी के प्रोसेस लिख रहा हूँ, ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी, ओके। तो अगर मैं पैरिटी देखूंगा इस सिस्टम का, पैरिटी देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो रिएक्टेंट का पैरिटी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा सी ऑफ ए
इंटू पी ऑफ बी, और जो प्रोडक्ट है उसका क्या होगा, कितना होगा सॉरी, पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ डी। P मीन्स है पैरिटी, ओके। सो पैरिटी ऑफ ए इंटू पैरिटी ऑफ बी, और इधर आपका क्या है, पैरिटी ऑफ सी इंटू पैरिटी ऑफ डी, ओके। समझ में आया? हाँ। अब पैरिटी ऐसा नहीं है कि पैरिटी कोई रिएक्शन का कंजर्व हो, कोई नेसेसरी नहीं है। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड EM इट विल बी कंजर्व, बट फॉर वीक इट विल नॉट बी कंजर्व, ओके। तो ये कौन सा लॉ में आएंगे फिर? अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। ओके, वेरी गुड। और जो पैरिटी टोटल सिस्टम का कितना होता है, टोटल पैरिटी टोटल पैरिटी को P से लिखते हैं, और इसका दो पार्ट होता है ना। एक होता है -1⁴l, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। -1⁴l है ना, ये ऑर्बिटल पार्ट है, और एक इंट्रिंसिक पार्ट है आपका, ठीक है। तो टोटल पैरिटी जो होता है -1⁴l, ये आपका क्या है, ऑर्बिटल पार्ट और इंट्रिंसिक पार्ट मल्टीप्लाइड, है ना। और जो सारे आपका लेप्टॉन है, सॉरी लेप्टॉन नहीं, सारे फर्मियंस है, उनका जो पैरिटी होता है वो +1 होता है ना। तो फर्मियंस में कौन कौन सा आता है बताओ पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, तो फर्मियंस ऐसे मत बोलो, फर्मियंस मतलब होता है आपका यहाँ पे लेप्टॉन्स एंड बैरियम्स। वेरी गुड। फर्मियंस में आता है आपका लेप्टॉन्स प्लस बैरियम्स, ठीक है। इसका जो होगा पैरिटी, इंट्रिंसिक पैरिटी कितना होगा इसका, कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। और इसका एंटी पार्टिकल का कितना होगा, इसका एंटी पार्टिकल का होगा -1। ठीक है। इसका एंटी पार्टिकल फॉर एंटी पार्टिकल फॉर देयर एंटी पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे -1 लिख देता हूँ इधर, बट ये बोसॉन के लिए ट्रू नहीं है। बोसॉन के लिए उसका पार्टिकल का और उसका एंटी पार्टिकल का दोनों के लिए जो आपका इंट्रिंसिक पैरिटी होता है वो -1 होता है। ये आप नोट डाउन करो, ठीक है। लिखे आप लोगों ने? फिर -1 होता है ना बोसॉन के लिए? हाँ, बोसॉन के लिए, बोसॉन के लिए और एंटी बोसॉन के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, -1 होगा इंट्रिंसिक पैरिटी, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब अभी बता रहा था जैसे आपका पैरिटी, अंडर पैरिटी जो साई, और बेसिकली यू कैन से लाइक दिस, साई ऑफ आर अंडर पैरिटी, साई विल बी चेंजिंग टू साई -r। अब साई -r इक्वल्स टू साई आर भी हो सकता है, साई आर भी हो सकता है। साई आर कब होंगे? सर जो एंटी Odd मतलब होगा तो odd even wave function। function। हाँ, वेरी गुड। तो इट में बी साई ऑफ आर और इट में बी साई ऑफ आर, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो पी ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और आपका साई ऑफ आर दे रहे हैं, इसका मतलब पी का आइगन वैल्यू कितना है, +1। है ना। अगर इसके ऊपर ऑपरेट करके माइनस दे रहे हैं, इसका मतलब पी का आइगन वैल्यू कितना है, -1। -1। तो पैरिटी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या हो सकते हैं, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है। ये अतुल सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे जब क्वांटम मैकेनिक्स का क्लास चलेगा, ठीक है। सर टोटल और इंट्रिंसिक पैरिटी पढ़ा, तो मिसिंग पार्ट क्या था? सर इंट्रिंसिक पैरिटी पढ़ा, टोटल पैरिटी पढ़ा, तो डिफरेंस क्या था, कुछ मिसिंग पार्ट है क्या? नहीं, टोटल पैरिटी मैंने क्या लिखा था, टोटल पैरिटी लिखा था -1⁴l इंटू इंट्रिंसिक पैरिटी, मतलब कोई सिस्टम का एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ना, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम पार्ट
आपका कोई सिस्टम का एल दिया रहेगा तभी आप निकाल सकते हो उसको, और एग्जाम में जब आएगा एल गिवन रहेगा, है ना। और पार्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको हम पढ़ेंगे, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल जो पैरिटी लिखा Yes. था वो कितना था, ऑर्बिटल पार्ट इनटू इंट्रिंसिक पार्ट, है ना। तो मिसिंग मतलब वो ऑर्बिटल पार्ट को आप मिस कर रहे हो, है ना। -1 एल लिखा था ना मैं। यस सर। हाँ ठीक है ना। कोई समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को, है ना। सर समझ में आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर टोटल पैरिटी मतलब टोटल सिस्टम का पैरिटी, हाँ मतलब टोटल एक न्यूक्लियस है, टोटल न्यूक्लियस का पैरिटी बोल रहे हो ना आप? मतलब टोटल न्यूक्लियस सिर्फ नहीं, जो सपोज मान लो ऐसे कोई रिएक्शन में अभी लिख रहा हूँ और बाद में भी पढ़ाऊंगा आपको। सपोज मान लो कोई पाई माइनस, है ना, कोई पार्टिकल है, सपोज मान लो डॉयटेरियम है ना, इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, डॉयटेरियम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसका एंगुलर मोमेंटम गिवन है, इसका एंगुलर मोमेंटम सपोज मान लो 1, ठीक है। और ये भी सपोज मान लो गिवन है कि इसका जो आपका पैरिटी है, इंट्रिंसिक पैरिटी कितना होगा, इसका इंट्रिंसिक पैरिटी बेसिकली इसका कितना होगा पाई माइनस का, पाई माइनस का माइनस तो एक बोसॉन होता है ना। बोसॉन है ना, तो -1 Yes, sir. होगा ना। और सपोज मान Yes, लो sir. डॉयटेरियम का गिवन है, पीडी गिवन है, सपोज मान लो 1 गिवन है, तो इसका टोटल सिस्टम का पैरिटी कितना हो गया, टोटल -1. पैरिटी -1 मतलब -1 इनटू इंट्रिंसिक पार्ट कितना हो जाएगा, -1 इनटू 1, ये आपका टोटल पैरिटी हो गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन में आएंगे 2 दिन बाद जब हम प्रॉब्लम में जाएंगे फिर सॉल्व करेंगे ना। अभी तो इतना याद रखो कि टोटल जो पैरिटी होता है वो ऑर्बिटल पार्ट होता है इनटू इंट्रिंसिक पार्ट होता है ना। ऑर्बिटल पार्ट मतलब -1 ठीक है। सर एक सेकंड सर। हम्म। सर ये जो एग्जांपल आपने दिया, जब आप एल कंसीडर कर रहे थे तो आप पाई माइनस और डी दोनों का एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर रहे थे, राइट? हाँ पाई माइनस डी दोनों का एंगुलर मोमेंटम, यस। ओके ओके, मतलब -1 इनटू इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ इंडिविजुअल। हाँ दोनों का इंट्रिंसिक पार्ट का इंडिविजुअल जो है वो मल्टीप्लाइड होगा, है ना। ओके ओके सर, आपको बिल्कुल यस समझ सर। में आएगा, है ना, यही है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपका आगे के लिए भी, है ना। कोई प्रॉब्लम? सर ये जो हेलिसिटी है, हम्म हेलिसिटी में एक इक्वेशन था इज डॉट पी बाई मॉड एस मॉड पी। हम्म तो ये जो मॉड एस एंड मॉड पी है, ये हम 1 एज्यूम कर रहे हैं या नहीं, ऑन एज्यूम कैसे कर रहे हैं हमें, +1 -1 क्यों हो रहा है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है ना। जैसे आपका a डॉट b डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ a इनटू b करोगे तो यूनिट ओके 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 सर। ऑन ही आएंगे ना, सॉरी वेक्टर नहीं हाँ होगा। हाँ मैं हाँ, यूनिट सॉरी सर, ऑन ही आएंगे ना। यस यस यस। हाँ कोई प्रॉब्लम और कोई रिस्पांस नहीं है, कोई प्रॉब्लम? कोई नो प्रॉब्लम नहीं सर। सर। ओके ठीक चल रहा है। यस सर। ओके अभी टाइम जबरदस्त चल। सर 15 मिनट्स। so 10 more minutes, right? यस सर। So we'll discuss now about the time reversal. इसको टी कैप से नोट करते हैं। टी कैप मीन्स ये ऑपरेटर है। तो बेसिकली टाइम रिवर्सल में क्या है, जो आपका टाइम कोऑर्डिनेट है ना, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन में उसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, है ना। जैसे आपका सपोज मान लो फोर्स को क्या लिखते हो, m बताओ, d2r by dt स्क्वायर। d2r by dt स्क्वायर। यहाँ पे जो टाइम का है ना, इसमें आपका माइनस टी हो जाएगा, dt स्क्वायर है ना, माइनस हो जाएंगे। तो इसका रोल है कि कोई टाइम कोऑर्डिनेट है उसको क्या करेंगे, माइनस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, सपोज मान लो टी आपका आर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, क्या मिलेगा, R. वेरी गुड। डेल के ऊपर, Del. वेरी गुड। रो के ऊपर, वेरी गुड। रो मींस चार्ज डेंसिटी, राइट, ठीक है। जे के ऊपर,
सर माइनस माइनस जे। माइनस जे। वेरी गुड, है ना, ये वेक्टर है। फिर आपका और कौन छूटा है एक्सीलरेशन के ऊपर? सर एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर एक्सेलरेशन। वेरी प्लस गुड, प्लस माइनस नहीं होंगे? नो सर। माइनस नहीं होगा क्योंकि dt स्क्वायर है। वेरी गुड, मीन्स एफ का एफ ही होंगे ना? यस सर। ठीक है, तो अंडर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन this quantity will be changed like that. Now what will happen to that electric field, magnetic field and vector potential? Calculate करो और बताओ मेरे को। सर ई चेंज नहीं होगा। ई चेंज नहीं होंगे, वेरी गुड। कैसे? तो डेल डॉट इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो अंडर टी सबको समझ में आ रहा है कि ई का चेंज नहीं होगा या होगा? सर नहीं होगा। नहीं चेंज होगा। वेरी गुड। तो अंडर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ओके, तो ई विल नॉट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, राइट? यस 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 सर। वेरी गुड। और वेक्टर पोटेंशियल का क्या होगा? चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ, सर चेंज होगा। वेरी गुड। चेंज होगा सर। हाँ, ओके। अब ये बताओ ई डॉट बी का क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा? सर होगा। तो वेक्टर पोटेंशियल एक बार बता दीजिए कैसे होगा। वेक्टर पोटेंशियल, अच्छा, हाँ, वेक्टर पोटेंशियल बी इक्वल्स टू कितना होता है? कर्ल ऑफ ए होता है ना, बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बी क्या हो जाएंगे? माइनस बी हो जाएंगे। कर्ल का कोई चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली ए को चेंज होना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, बी इक्वल्स टू क्या होता है? कर्ल ऑफ, है ना? तो अंडर टाइम रिवर्सल b will be minus b and there will be no change in del, so definitely there will be change in a. Okay, यस सर। e dot b का क्या होगा? माइनस e dot b, राइट? यस। ठीक है, ठीक है ना? तो सारे क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है अंडर टाइम रिवर्सल, अंडर पैरिटी, आपको पता चल गया है ना? आई थिंक आपको इतना आइडिया था अंडर पैरिटी आर को माइनस आर हो जाएंगे, बट इतना सारे जो प्रॉपर्टीज है आप लोगों ने नया सीखे हुए ना, एंड बहुत रेयरली Yes, sir. है ना। सिमिलरली टाइम रिवर्सल में जो सारे प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है वो आज आप लोगों ने सीखे हुए है ना। कोई डाउट हो तो बताओ। सर आपने मैक्सवेल इक्वेशन जो थी उसको 3 कंडीशंस में इनवेरिएंट बताया था, है ना? हाँ तो सर पहली तो हम लोगों ने पैरिटी वाली देखी थी सर, दूसरी ये टाइम रिवर्सल वाली, तीसरी कौन सी थी सर? हाँ, चार्ज कॉन्जुगेशन। ओके ओके सर। चार्ज कॉन्जुगेशन। अभी टाइम है जी सर। कितना हुआ अभी टाइम? नहीं हो पाया। ओके, सर, तो 750। हाँ कल डिस्कस करेंगे हम, है ना? है ना? सर कैसे लगा? ठीक लगा? यस सर। सर बहुत अच्छा था सर। sir how we know that Maxwell's equation is invariant under this हाँ, CPT? देखो ये- इसीलिए इस वे में आप सोचो कि टाइम रिवर्सल मतलब आप रिवर्स में जा रहे हो। मैक्सवेल इक्वेशन आज भी यही लिखा जाता है, पहले 10 साल पहले ऐसे लिखा जाता था, है ना? उससे पहले 100 साल पहले भी लिखा जाता था और 10 साल पहले भी लिखा जाएगा, है ना? तो टाइम के साथ कोई चेंज नहीं ना। मैक्सवेल इक्वेशन आप यहाँ भी लिखोगे, मून पे भी लिखोगे, मतलब इस पे इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी लिख सकते हो, है ना? समझ रहे हो ना? तुम्हें कोई डाउट? 10 साल पहले भी ऐसे लिखा जाता था ना। हाँ सर। उसीलिए ठीक है। और parity? हाँ, पैरिटी के लिए स्पेस Parity. का बोला ना, स्पेस में आप कहीं पे भी लिख सकते हो, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? स्पेस पे कहीं पे मैक्सवेल इक्वेशन यूज है ना? मतलब यहाँ पे भी वही यूज होगा, मून पे भी वही यूज होगा, वो यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है? Okay. ठीक है ना? इतना Yes, sir. Yes. आपके लिए सफिशिएंट है और आई एम डैम श्योर ये सारी चीज आपको रिसर्च में काम में आएंगे, है ना? जी सर। ओके, ठीक है, फिर हम अच्छा सर, हाँ बोलो। सर 10 मिनट बचे थे तो सर टाइम रिवर्सल जो ऑपरेटर है सर इसका हम्म। सिग्निफिकेंस क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? टाइम रिवर्सल मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लो, जी सर। हाँ, मतलब इसके थ्रू आप फ्यूचर को या पास्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट ये रियली
इसमें काम चल रहा है ना, आप आगे डेफिनेटली कुछ करोगे, बट मैं पिक्चोरियली आपको शो करता हूँ। सपोज मान लो a प्लस बी, इसका रिएक्शन होकर आपका c प्लस डी प्रोड्यूस हो रहा है। a प्लस बी का रिएक्शन होकर c प्लस डी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसमें टाइम रिवर्सल लगाओगे तो इसमें क्या होना चाहिए बताओ? c C plus D से A plus प्लस डी से a प्लस बी में जाएगी। समझ रहे हो? मतलब उल्टा हो रहा है एक्चुअली, समझ रहे हो? जी सर। या जो हमारा रियल वर्ल्ड है ना, रियल वर्ल्ड समझ मान लो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है ना, तो अंडर Yes, sir. टाइम रिवर्सल क्या होगा, ये रिवर्स की तरफ मूव करेगा, है ना। मतलब पास्ट को भी आप पहचान सकते हो, और वो आपका काम है। मैं आपको काम दे रहा हूँ पास्ट के लिए, पास्ट में क्या हुआ था वो टाइम रिवर्सल के थ्रू आप रिसर्च करना और बताना, ठीक है? जी सर। हाँ yes sir. ओके, ठीक है। हाँ यहीं पे हम छोड़ते हैं, है ना। Thank you sir. मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। हाँ मोस्ट वेलकम। ओके, Thank गुड you, नाइट sir. ऑल। हाँ वेलकम। ओके, हाँ बाय।